We start, Rohit. So wait for a minute. Good morning to one and all. I welcome you all to the third day of this webinar series on Yogasana practice and lecture series organized by the Department of Physical Education, Dhyan Prasarak Mandals College, to celebrate the 7th International Yoga Day. The International Yoga Day is celebrated on 21st June all over the world, and today we all are celebrating the 7th International Yoga Day through this webinar series. I wish all the participants and resource persons a happy and healthy International Yoga Day, and once again welcome you to this platform. The theme for the International Yoga Day 2021 is Yoga for Well-being. The significance of yoga has been strongly recognized during the pandemic of COVID-19 and has emerged as a global trend when mental and physical health is under stress. Yoga provides physical and mental relaxation and also plays an important role in rejuvenating our mind and the body, leading to a healthier lifestyle. Different yogasanas give various benefits to the health and mind. Asanas essentially work to lubricate muscles, joint, ligaments, and other parts of the body. The session held in this webinar series on 18th and 19th June highlighted the importance of pranayama through a lecture by Lieutenant Dr. Shyam Narayan Singh and live demonstration of pranayama techniques by Sri Sanjeev Nanduji.
Today, we have yet another very enlightening session on the different yogasana and its benefit by Sri Utkarsh Naik ji. Sir is practicing yoga and sadhana for last 6 years. He is qualified BE Mechanical Engineer from Savitribai Phule University of Pune. He is having packaging industry in Madkai GIDC, Funda, Goa. Sir is member of Vibrant Goa since 2019. Sir is also member of Indian Biodiesel Corporation, secretary at Hindavi Swaraj Sangatana, Funda, Goa. He is qualified judge at National Yogasana Sports Federation. Sir has conducted many seminars and demonstrations in many schools and colleges. I present before you Sri Utkarsh Naik ji, who will take today's session. I request Sir to begin with this session. Participants, please note that while Sir will be explaining the asanas, his assistant, Mr. Sachin Naik, will make the live demonstrations simultaneously with explanations. Mr. Sachin is Masters in Fine Arts and presently working at Bhatikar High School as Fine Arts teacher. He is recipient of Goa Surjan Puraskar given by Directorate of Art and Culture and a sadhak of Om Nitya Divya Yogashram. I present before you Sri Utkarsh Naik ji. Sir, please take over the session. प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैतकेनं योगाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिमानतोऽस्मि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय आविरानिमयेति। ओम शांति शांति शांति। अपना जो माता है वो जमीन धरती माँ को लगाएंगे और एक नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी योग प्रेमियों को जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं ध्यान प्रसारक मंडल कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे योग और उसके फायदे यह विषय आपके सामने रखने का मौका दिया। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल श्री दिलीप अरोलकर जी, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन श्री सुशांत हल्दनकर जी, कॉलेज के इंस्ट्रक्टर इन फिजिकल एजुकेशन तथा इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री रोहित नायक जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक के कठिन परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य को प्राधान्य देते हुए आपके सामने यह 3 दिन का एक अप्रतिम कार्यक्रम रखा है जिससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो इसे हम विषय की ओर अग्रसर करते हैं। तो मेरा विषय है योग और उससे होने वाले फायदे। तो योग और उसके होने वाले फायदे जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि योग मतलब क्या है। व्हाट इज योग? तो इसका बहुत सारा वर्णन दिया है, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है। तो मैं कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों से, जो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है भगवत गीता, उसी से दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में से एक छोटा सा श्लोक का एक वर्ड लेता हूं। समत्व योग उच्यते,
योग मतलब समत्व, समत्व यानी बैलेंस, बैलेंस। तो ये बैलेंस किस चीज का? तो बैलेंस है हमारे बॉडी और माइंड का। तो बैलेंस है हमारे बॉडी और इमोशंस का, बैलेंस है हमारे बॉडी और थॉट्स का, बॉडी और इंटेलेक्ट का। तो इन सब चीजों का जब बैलेंस हो जाता है सही मात्रा में शरीर में, उसी को हम योग बोलते हैं। एक उदाहरण है कि संस्कृत भाषा में योग जो शब्द लिया है वो यूज से लिया है। यूज, यूज मतलब क्या? टू जॉइन, यूज मतलब टू जॉइन और जोड़ना होता है। अभी एक बात आप समझ लो कि कोई भी चीज एक नहीं जोड़ सकती, जोड़ने के लिए उसको दो या तीन या दो के मल्टीपल होना चाहिए, दो से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो जुड़ती है। और जब चीजें जुड़ती है ना तब वो एक हो जाती है। तो योग मतलब यही एक है, सब चीजें जुड़ के वननेस आना बॉडी में। सो व्हाट इज योग? योगा इज वननेस। वननेस ऑफ व्हाट? हमें हम बोलते हैं कि योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यही है। मिलन मतलब ज्वाइन हो जाना और जोड़ना होता है। क्रिया योग में भी उसका उल्लेख किया है। क्रिया योग में बताया योग कर्मसु कौशलम, मतलब जो आपका स्किल है, एक्शन, एक्शन थ्रू स्किल्स है, उससे ही योग का वर्णन हो जाता है। वैसे ही जो ज्यादा करके रेफरेंस लिया जाता है सभी, मतलब योग का जब किसी से पढ़ते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं या किसी पे कोई कुछ रिसर्च करता है तो ज्यादातर जो रेफरेंस लेते हैं वो पतंजलि सूत्रों का लेते हैं। वैसे ही पतंजलि सूत्रों में योग को 8 चरणों में बांटा गया है, उसे हम अष्टांग योग बोलते हैं। तो ज्यादा करके क्या होता है, हम लोगों का क्या मानना रहता है कि योग मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करना रहता है, अपने बॉडी को इधर से उधर तोड़ना रहता है, या ज्यादा करके प्राणायाम। उससे ऊपर हम कोई विचार भी नहीं करते कि योग मतलब हम लोगों को लगता है कि आसन है और प्राणायाम है। ऐसा नहीं है। योग में 8 चरण होते हैं। वह 8 चरण है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जिसको हम बहिरंग भी बोलते हैं, मतलब बाहर के अंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग है। जब ये पहले के 4 टप्पे आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तभी ही आपको अंतरंग में वो आनंद मिल पाएगा, वो खुशी मिल पाएगी, और जो कुछ आप चाहते हो योग से वो आपको मिल जाएगा। तो यह एक बेसिक आउटलाइन है योग की। वैसे बहुत व्यापक विषय है, बोलने को गए तो 1 घंटा भी हमको नहीं पहुंचेगा, ऐसा बहुत ही व्यापक विषय है योग। तो इन जनरल मैंने आपको आउटलाइन दी है कि योग मतलब क्या है। तो क्या होता है कि सीधे बेनिफिट्स पे आते हैं। अभी हमने प्रार्थना की, उसके बाद में हमने एक धरती माँ को नमस्कार किया, उधर से ही हमारा ना अनजाने में हमारे बॉडी को बेनिफिट होना चालू हो गए। कैसे? 2 रीजन है। एक फिलोसॉफी जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि हमारा पूरा काम इस धरती माँ पे होता है, हमारा उठना, हमारा जागना, हमारा काम करना, हमारा सोना, पूरा इस धरती माँ पे होता है। तो पहला प्रणाम उसको, सही है कि नहीं? पहला प्रणाम उसको, ये हो गई फिलोसॉफी। पूर्वज जो कहते हैं वो कभी साइंस नहीं बताते थे हमको, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस भी है। तो साइंस क्या है कि हमारे मस्तिष्क के बीच में एक ग्लैंड होता है, उसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। बहुत सारे संस्थाएं उसको थर्ड आई भी बोलते हैं हमारे बॉडी का। तो जो पीनियल ग्लैंड है ना, जब हम माता जमीन को देखते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाता है। पीनियल ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बॉडी में बैलेंस करता है, स्लीपिंग पैटर्न्स आपके कंट्रोल में रखता है। एक बहुत ही अच्छा हार्मोन मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, जिससे हमारा सेक्सुअल बिहेवियर पता चलता है, जिससे हमारे कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हमको जो आते हैं वह ठीक करता है। बहुत सारे फायदे हमारे शरीर को एक पीनियल ग्लैंड देता है।
एक आसन क्या है, जब धरती माँ को प्रणाम करते हैं, जब कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बॉडी को क्या करते हैं, हम बॉडी को व्यायाम देते हैं, हम बॉडी को क्या करते हैं, हम बॉडी को रेडी करते हैं, सही है ना। हम हमारे पूरे बॉडी को एक रेडीनेस देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वार्म अप देते हैं, और योगा की भाषा में वही वार्म अप को हम क्रियास बोलते हैं। योगा की भाषा में उसी को हम क्रियास बोलते हैं। तो चालू करते हैं क्रियास से। जो पहली हमारी क्रिया है वो है श्वसन क्रिया। Hello, sir. So your video, please adjust your video. Yeah, thank you. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की तरह वजह से वीडियो नहीं दिख रहा था। Yeah, it's जो okay. हमारी, जब कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम बॉडी को पहले तैयार करते हैं। बॉडी हमारी पहले तैयार होनी चाहिए, तभी हम वो एक्सरसाइज को पूरा कर पाते हैं। तो यह क्रियास है श्वसन क्रिया, जो हम जानबूझ के हम हमारा श्वास जो है वो बाहर फेंकते हैं। तो क्लास का ये कैसा रहेगा कि हम पहले आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि ये आसन किसको करना है, किसको नहीं करना है, किसको वर्ज है। उसी हिसाब से बाद में आपको करना है। आपका जो पैरों के बीच अंतर होना चाहिए, क्योंकि जब आंखें आप बंद करोगे ना, तब आपको चक्कर आ सकता है। जैसे आप अंतर रखिए, अपनी दृष्टि को कॉन्शियसली श्वास एक रेलगाड़ी जैसी चलती है ना, पहले स्लो स्टार्ट करेंगे, एक स्पीड पकड़ेंगे और बाद में स्लो करेंगे, वैसा आपका सिस्टम चलना चाहिए। अभी स्लो कर रहा है, देखो, दृष्टि सरल है, आंखें खुली है। अभी दृष्टि बंद, और अपना जो ध्यान है ना, वो आप बीच मस्तिष्क पे लगा लीजिए। बीच मस्तिष्क पे अपना ध्यान पूरा लगा लीजिए। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान बीच मस्तिष्क पे लगा दीजिए। तो शुरू करते हैं आपसे फिर एक बार श्वसन क्रिया। शुरुआत करेंगे, पोजीशन लेंगे सब लोग, आंखें, दृष्टि सरल, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, स्लो स्लो, स्पीड पकड़ेंगे। धीरे धीरे गति को कम करेंगे। अपना जो ध्यान है वो पूरा मस्तिष्क पे लगा दीजिए बीच में। श्वसन क्रिया के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले तो जब हम एयर इनहेल करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से गैसेस अंदर लेते हैं। तो जब हम हमारा इनहेलेशन होता है, तो एयर का जो कंपोजिशन होता है 78% नाइट्रोजन ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम इनहेल करते हैं बॉडी में। और जब छोड़ते हैं ना, तब हम 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं,
जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो 21 की जगह हम 17 छोड़ते हैं, मतलब 4% ऑक्सीजन हम बॉडी में यूज करते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको हम 4% छोड़ते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। असल में हम पूरे गैसेस लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन ही बॉडी में यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जितने भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक टॉक्सिक जो पॉइजनस गैसेस है, टॉक्सिक एयर है, वो हमारी बाहर जाती है और प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन हमको मिलता है बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी रिवाइटलाइज हो जाती है। हमको एक बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, रक्त संचालन अच्छा होता है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में और एक ग्लैंड रहता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं कई जगह पे उसको, जो पूरे ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड काबू में आने के कारण ये पूरे ग्लैंड्स भी हमारे काबू में आते हैं। तो हम दूसरी क्रिया की ओर बढ़ेंगे, वो है ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। जो ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया है ना, जो किसी को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो ना करे, क्योंकि प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो भी ना करे, किसी को चक्कर आता है बार बार तो भी ना करे। तो ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करने का जो सरल है वो मैं आपको बताता हूं। अपना जो चिन्ह है ना, वो ऐसे कंठ को लगाने का नीचे, और आंखें खुली होनी चाहिए, आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। दाई ओर से बाई ओर 3 राउंड लगाने का गोल, और बाई से दाई ओर गोल 3 राउंड लगाने का। समझ में आया? तो शुरुआत करेंगे। एक, बाई से दाई ओर 1 2 3, दूसरी ओर 1 2 3। आंखें बंद कीजिए, लक्ष्य अपने कपाल के भीतर रखिए, लक्ष्य अपने कपाल के भीतर रखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बॉडी में एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड करके, उसको आपने अभी स्टिमुलेट किया है, थायरोक्सिन हार्मोन को आपने स्टिमुलेट किया है, जिससे आपको मानव के संबंधी कोई भी विकार हो जाए, गोइटर हो, वो थायरोक्सिन ग्लैंड से अच्छा होता है। एक लंबा श्वास लेंगे, मतलब श्वास प्रक्रिया 4 होती है लेकिन आपको 3 समझना चाहिए। तो हम एक लंबा श्वास अंदर लेंगे, पूरा पूरा रेच। अभी हम तीसरी क्रिया करेंगे, स्कंद शक्ति विकास क्रिया। ग्रीवा मान के संबंधी, स्कंद अपने बाहों के संबंधी। इसको क्या करना है, अपने अपने हाथों का एक पोजीशन करके रखना है। ये पोजीशन में अपने हाथ को लेना है और अपने शोल्डर पे ऐसे लगा के आगे लेके आना है, और एक गोलाकार आकार में आगे से पीछे 3 बार गोलाकार आकार में, कान के ऊपर से आना चाहिए, पूरा गोलाकार आकार में, ऐसे ऐसे नहीं करना है, बाहर से पूरा गोलाकार करना है, और पीछे से आगे 3 बार करना है। तो शुरू करेंगे, आगे से पीछे 3 बार, 1 2 3, पीछे पीछे से आगे 1 2 3। आंखें बंद करेंगे और शरीर में जो कुछ हलचल होती है उसको महसूस करेंगे। हमारे बॉडी में और एक ग्लैंड होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है उसको नियंत्रण में लाता है। अभी ये कैल्शियम का क्या महत्व है, हमारी जो हड्डियां है ना उसको मजबूत बनाता है कैल्शियम, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर कैल्शियम सीक्रेट हुआ तो हमको किडनी स्टोन भी हो सकता है, मूत्र छाया में पत्थर भी आ सकता है। तो हमको एक कैल्शियम उचित मात्रा में सीक्रेट करने के लिए पैराथायरोक्सिन हार्मोन मदद करता है। तो यह क्रिया करने से आपका पैराथायरोक्सिन हार्मोन अच्छी तरीके से सीक्रेट हो जाता है। अभी हम आसन की ओर बढ़ेंगे। पहला जो आसन है वो अर्धकटी चक्रासन है। अर्धकटी चक्रासन में क्या होता है
कि आपको अपने दोनों पैरों को एक लाइन में ले आना है। पहले दायां पैर लाइन में आएगा, बाद में आपका जो हाथ है ना वो कमर के पीछे ऐसा सपोर्ट लेके आना चाहिए आपको। आपके हाथ को कमर के पीछे सपोर्ट लेना है, मतलब कमर के पीछे सपोर्ट लगाना चाहिए। इस तरह से कमर के पीछे सपोर्ट लगाना चाहिए ताकि आपके बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको श्वास लेके पीछे मुड़ना है, श्वास लेके आपको पीछे मुड़ना है। तो शुरू करेंगे। पहले क्या करेंगे, अपने पैरों को एक लाइन में लेके आएंगे, दाया पैर आगे और कमर पे ऐसा सपोर्ट लगाएंगे ताकि कमर आपका झुके ना। तो श्वास लेके पीछे मुड़ना है, 1 2। तो आपको ऐसा करना है। अभी कौन नहीं करेगा? जिसको सीवियर बैक पेन है, जिसको सीवियर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। बैक बेंडिंग के जो भी आसन होते हैं उसको नहीं करना चाहिए। सीवियर बैक पेन जिसको है वो, उसको हेडेक किसी को है उसको भी नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम अर्धकटी चक्रासन से। पैरों की स्थिति लेंगे, वही हम दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। पहले दाया पैर आगे लेंगे, कमर पे सपोर्ट लगाएंगे और श्वास भर के पीछे मुड़ेंगे, 1 2। फिर एक बार करेंगे, 1 2। अभी पैर चेंज करेंगे, दूसरा पैर आगे लो, राइट फुट आपका आगे लो, एक लाइन में करेंगे। दूसरे कमर के दूसरे हिप मसल के ऊपर हम सपोर्ट लगाएंगे, 1 2। फिर एक बार, 1 2। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रख के अपना ध्यान सिर्फ श्वासों पर लगाना है। जो श्वास अंदर लेते हैं और जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं उसी पर ही अपना ध्यान लगाना है आपको। हर आसन करने के बाद आपको आराम करना जरूरी है, क्योंकि जब हम आसन करते हैं ना तब हम हमारे बॉडीज को, हमारे टिश्यूज को एक एक्सरसाइज देते हैं, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे बॉडी में अच्छी तरह से इसे संचालन होना चाहिए। तो उसीलिए हर योगा करने के बाद हमको थोड़ा सा आराम लेना चाहिए। ऐसा बोलते हैं जितना टाइम योगा में लगाते हैं उतना ही टाइम आराम में भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी को उसके अच्छे फायदे होते हैं। एक लंबा श्वास अंदर लेंगे, पूरक रेच पूरक रेच। अभी ये आसन करते फायदे मिलते हैं। जब हम स्ट्रेच करते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लुब्रिकेट बनाते हैं। जैसा अभी सर ने बताया, हम लुब्रिकेशन देते हैं आसन में हर बॉडी पार्ट्स को, लेकिन वो जब बताने की जरूरत नहीं है। पेट की चर्बी को हम करते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं उसके। हम अगला आसन लेंगे, हस्त प्रसारासन। हस्त प्रसारासन में आपको क्या करना चाहिए, आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए और जब हम श्वास लेंगे ना तो पैरों के पंजों के ऊपर ऐसा खड़े रह के हमको श्वास से ऐसा हाथ नीचे, तो गति ट्रेन की स्पीड की तरह रहेगी, पहले स्लो फास्ट स्लो। तो क्या करेंगे, देखो पहले ऐसे आपको प्रक्रिया करनी है। तो शुरू करते हैं। हस्त प्रसार, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, श्वासों पर ही अपना ध्यान लीजिए पूरा। आंखें बंद करके अपना श्वास पूरा श्वासों पे लीजिए। अभी आपने जो आसन किया उससे हमारे जो काफ मसल्स होते हैं, हमारे जो थाई मसल्स होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, उसको हमने पूरा मसाज किया है। पूरा जो हमारा मांसपेशियां है उसको अपने केक खिंचाव दिया है, जिससे कारण अपना जो ब्लड सर्कुलेशन हुआ है वही पार्ट में उस वो हमारा ज्यादा हुआ है। हम ज्यादा प्योर एयर अंदर ले रहे हैं,
हैं, हम ज्यादा ऑक्सीजन लेके हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो पा रहा है। तो जाने अनजाने में बहुत सारे फायदे हो रहे हैं बॉडी को। तो अगला आसन है बैलेंस। तो बैलेंसिंग आसन बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ टिप्स भी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको नियमित जब आप कर रहे हो तो आपने योग करना ही है, क्योंकि बॉडी में समतोल बनाता है, बॉडी में बैलेंस बनाता है, अपनी अपर बॉडी अपनी लोअर बॉडी को एक प्रोपोर्शन में लाता है। तो इसका बहुत सारे फायदे हैं। तो पहला हम आसन करेंगे वो है ताड़ासन, ताड़ की तरह खड़े रहना। तो यह प्रक्रिया देखो कैसा हो गया। पहले आप अपने फिंगर को ऐसा लॉक करेंगे, फिंगर को ऐसा लॉक करेंगे और आगे की तरफ ऐसा खींच लेंगे और श्वास भर के अपने पैरों के पंजों के ऊपर रह के आपको ऐसा खींचना है। ऐसा खींचना है जैसे आपको ऊपर से कोई खींच रहा हो, आपको ऊपर 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 लेके जाना है। समझ में आया? जब छोड़ते हैं तब श्वास छोड़ के ये पोजीशन में जैसे गए थे वैसे आपको वापस आना है। तो शुरू करते हैं ताड़ासन। अपने हाथों को लॉक कीजिए। जिसको हेडेक है, माइग्रेन है, बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि और भी वर्ष हो सकता है। हेडेक और माइग्रेन जिसको प्रॉब्लम है वो ना करे। प्रेग्नेंट वुमन जो है वो भी ना करे, क्योंकि इसमें पेट में खिंचाव आता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो शुरू करते हैं ताड़ासन। इंटरलॉक कीजिए, आगे की तरफ फैलाइए, ऊपर लेके जाइए और अपने आप को खींचिए, ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए, खींचिए। बैलेंस में रहिए, बैलेंस 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 में रहिए। कंट्रोल करना है अपने बॉडी को। रिलैक्स, छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व विद इन यू what is happening inside you, how your cells has revitalized, how your body react, how your body react after the asanas. You just see inside you what is happening. अपने जो पैरों के मसल्स है वो पूरे स्ट्रेच हो गए हैं, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच हो गई है, मसल्स हाथों के जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो गए हैं। जो किसी को वासनेस की प्रॉब्लम है वो भी इससे ऊंची बढ़ती है, अपनी हाइट बढ़ती है। बहुत सारे फायदे होते हैं इससे। एक लंबा श्वास लीजिए, पूरक, रेचक, रेचक, पूरक, रेचक। दूसरा एक आसन करेंगे बैलेंसिंग आसन, और वो है वृक्षासन। तो वृक्षासन करने से पहले आप देख लीजिए कि स्थिति कैसी होनी चाहिए आपको। एक पैर के ऊपर आपको खड़ा रहना है। देखिए ये जो पैर है ना वो 90 डिग्री में होना चाहिए, 90 डिग्री, पूरा ऐसा 90 डिग्री होना चाहिए इधर से। और ये अपने दूसरे पैर के जांघ पे ऐसे लगाना है और आपको ऐसे खड़े रहना है। तो शुरू करेंगे। इससे हम टिप देता हूं, एक लाइफ में भी बहुत आपके काम आएगी। बैलेंसिंग आसन तभी हो सकता है जब आपकी दृष्टि सरल हो और एक ही चीज पे हो। बैलेंसिंग आसन तभी हो सकता है जब आपकी दृष्टि सरल हो और एक चीज पे हो, आप कभी नहीं गिरोगे। लाइफ में भी वैसा ही होता है, जब आपका फोकस किसी चीज पे या किसी गोल में एक ही चीज पे रहेगा ना, तो वो गोल आपका 100% अचीव हो जाएगा। सेम बैलेंसिंग, आप कभी नहीं गिरोगे, वो ही बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग आसन करते हैं, वृक्षासन। स्थिति करते हैं, अपना पैर अपने जांग पे लेंगे, दृष्टि सरल, कभी नहीं गिरोगे, और ऐसे आपको दृष्टि सरल रख के आपको खड़े रहना है। रिलैक्स। दूसरा पैर लेंगे, दूसरा पैर लेंगे, पिनियल ग्लैंड अभी अभी जो बताया है, बैलेंस करता है बॉडी को, बैलेंसिंग करता है। ये आसन में आप पूरा अपने बॉडी को खींच लेते हैं, एब्डोमिनल मसल बोलिए, तो जो पेट की चर्बी है वो लिए, थाई मसल, काफ मसल, सब नियंत्रण में आ जाते हैं। रिलैक्स। एक लंबा श्वास लीजिए, पूरा, रेच, पूरा,
रेच, प्र, रेच। अगला आसन करेंगे पदस्थासन। पद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, पैर और हाथ को एकत्र लाना, पदस्थासन। तो देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसी है। तो पहले अपने हाथ को ऐसा पीछे लेंगे और जमीन को हाथ लगा। पहले पहले लोगों का क्या होता है, पेट मोटा होने के कारण इतना भी आएगा, आने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाक घुटने को टिकाना है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले पहले इतना आ जाएगा, आने दो, उतना ही करो आप। बाद में इतना आ जाएगा, उतना ही करो। बाद में और नीचे जाओगे आप, उतना करो। बाद में आपका हाथ लगेगा, करो। धीरे 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 करो। बॉडी को एक्सेसिव एक्सरसाइज मत दो जिसके कारण आप पर उसका विपरीत परिणाम हो। एक्सेसिव कभी नहीं करना, जितना आपसे होता है उतना ही करने का। तो पदस्थासन शुरू करते हैं। जिसको लोअर बैक पेन है वो ना करे। तो पदस्थासन करते हैं। अपना जो माथा है वो घुटनों को लगाने की कोशिश करने का, जितना होता है उतना ही करने का। रिलैक्स, आंखें बंद, एक लंबा श्वास लीजिए। अपने अपने पेट को बहुत प्रेशर दिया है अभी, जिससे अपने जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना उस वो बहुत अच्छा हो जाता है। बाद में हमने अपने सिर को नीचे किया है, जिससे हमारे ब्रेन में जो भी कुछ ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी कुछ होना चाहिए वो अच्छी तरीके से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छा मसाज मिलता है, जिससे हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो जो नर्व्स है उसको कार्यरत करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे फायदे हैं पदस्थासन के, टाइम के अभाव से नहीं बता पा रहा हूँ। तो हम सीधा सूर्य नमस्कार की ओर जाते हैं। 3 सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले आप देखिए कि सूर्य नमस्कार कैसे होता है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग प्रकार के सूर्य नमस्कार पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कोई ये ना समझ ले कि ये सूर्य नमस्कार अच्छा है या ये सूर्य नमस्कार करेक्ट है या ये सूर्य नमस्कार रॉन्ग है। बॉडी को उससे उतने ही फायदे मिलते हैं, प्रक्रिया कैसी भी हो। तो हमारे 12 मात्रों का सूर्य नमस्कार है। इससे करने की प्रक्रिया को आप पहले समझ ले कि कैसा होता है। आपको अपना जो दाया हाथ है ना वो हार्ट पर ऐसा थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, थोड़ा सा प्रेस, जिससे आपको अपने हार्ट बीट समझ में आ जाए। एक सूर्य नमस्कार डालने के बाद आपका हार्ट कैसे बीट होता है वो आपको समझ, गति कैसे होती है वो आपको समझनी चाहिए इसको। इसलिए हाथ पे ऐसा थोड़ा सा प्रेस करके रखिए, अंगूठे वो ऐसा कंठ पे लगा लीजिए और नमस्कार स्थिति में पहला पोजीशन लीजिए। जो मनोमन है, सूर्य देव जब उगता है उसका इमेजिनेशन करने का, उसका अनुभव लेने का, उसका किरण आपके ऊपर पड़ रहा है ऐसा अनुभव लेने का। और प्रसन्न मुद्रा में दो मतलब पीछे आपको ऐसा बॉडी स्ट्रेच करना है। 3 में पदस्थासन हो जाएगा, अभी अभी जो पढ़ा है 3 में पदस्थासन हो जाएगा। 4 में अश्व संचालन हो जाएगा। 5 में आपको बॉडी पीछे लेना है। 6 में फिर से दूसरे पैर के साथ। 7 में फिर से बॉडी पीछे जाएगी। 8 में पर्वतासन। पर्वतासन करते समय ध्यान दीजिए कि आपके जो फुट है ना वो रेस्ट होने चाहिए जमीन पे, ऐसे नहीं होने चाहिए, आपके फुट रेस्ट होने चाहिए। 9 एक दंड निकालेंगे, जैसे गए हैं वैसे ही 10 में वापस आएंगे। 11 पैरों को फिर से पदस्थासन में आएंगे और 12 नमस्कार स्थिति में आएंगे। समझ में आया? एक टिप है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है योगा में कि श्वास कब लेना है और श्वास कब छोड़ना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो सीधा एक ही सिंपल लॉजिक पे आइए। जब भी हम अपना बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ना, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर जाता है, आपको सहज जाता है श्वास अंदर, कुछ लेना नहीं है। तो जब बॉडी स्ट्रेच करते हैं तब श्वास को अंदर लेना है, जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब श्वास को बाहर छोड़ना है। इतना ही आप ध्यान में रखिए। तो सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप हाथ को जोड़ेंगे, छाती पे थोड़ा सा दबा के रखेंगे, एक प्रसन्न मुद्रा में लंबा श्वास अंदर लेंगे और सूर्य देव की प्रार्थना करेंगे। ओम सूर्याय नमः। 2
3 4 5 स्ट्रेच किया बॉडी, श्वास अंदर लेना है। 6 नॉर्मल श्वासोच्छ्वास स्वाभाविक। 7 श्वास लेते पीछे। 8 बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, छोड़ना है। 9 बॉडी स्ट्रेच हो रही है, लेना है। 10 11 और 12 और एक करेंगे। ओम मित्राय नमः। बॉडी स्ट्रेच 2 पे, श्वास अंदर लेना है। 2 श्वास छोड़ना है। 3 4 5 श्वास लेना है। 6 दूसरा पैर। 7 8 पर्वतासन ध्यान से कीजिए। 9 10 11 12। अभी सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने हार्ट बीट को ऑब्जर्व कीजिए। वो थोड़े से ठोके बढ़ रहे होंगे, अपने हृदय के ठोके बढ़ रहे होंगे। तो यही जब आप 12-13 सूर्य नमस्कार करते हो, आप इमेजिन कीजिए एक स्प्रिंटर स्प्रिंट मारता है ना, वैसा आपको महसूस होता है। अभी आप सूर्य नमस्कार करने के बाद तुरंत शवासन में सो जाना चाहिए। शवासन एक पीठ के बल सोने वाला आसन है और योगा का सबसे डिफिकल्ट आसन है शवासन। थोड़े लोग हंस रहे होंगे कि डिफिकल्ट आसन बोल रहा हूं। हाँ, सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि शवासन में आपको सोना नहीं है, आपको कॉन्शियसली श्वास के ऊपर ध्यान रखना है। शवासन में आपको कभी सोना नहीं है। अभी सूर्य नमस्कार किया है, बॉडी में हीट जनरेट हो रही है आपकी, उसको महसूस कीजिए। श्वासों की गति आपकी बढ़ गई थी, वो अब डैम्पन हो रही है, कम। सहज रूप से श्वास श्वास अंदर बाहर ले लीजिए। पूरा ध्यान अपने श्वास पे ले लीजिए। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। सूर्य नमस्कार बहुत सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत उपयोगी करता है सूर्य नमस्कार। हमारे बॉडी को पूरा ऑक्सीडाइज करता है सूर्य नमस्कार। हमारे बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन करता है सूर्य नमस्कार। बॉडी को पूरा खींच देता है, बॉडी के पूरे मसल्स बोन्स को टोन करता है। बॉडी जब हम स्ट्रेच करते हैं, पूरा सेल्स, पूरा जो अंदर का सेल्स है उसे भी हम स्ट्रेच करते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार सुबह के टाइम पे करना ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हमारी एनर्जी है वो पीक लेवल पे होती है। तो सुबह के टाइम पे ही हमको सूर्य नमस्कार ज्यादा करके करना चाहिए। शवासन को छोड़ेंगे। शवासन करते समय अपने पैरों के बीच में अंतर रखेंगे और हाथ ऐसे हाथों की तलवे ऐसे ऊपर होनी चाहिए, आकाश की ओर। तो दूसरा आसन पीठ के बल सो के करेंगे, वो है उत्तान पादासन। मतलब ऊपर की ओर, और पाद मतलब पैर ऊपर की ओर खींच के पैर को लेना, उसको बोलते हैं उत्तान पादासन। तो शुरू करेंगे उत्तान पादासन। इसमें क्या होगा, उत्तान पादासन 3 भाग में करते हैं। पहले आपको दाया पैर अपना ऊपर लेना है। स्टार्टिंग में दोनों पैर नहीं उठाना है। स्टार्टिंग में दाया पैर ऊपर लेना है, एक ही पैर ऊपर लेना है, 30 डिग्री में लेना है। और आपका जो आंखों की नजरें है वो अपने अंगूठे पर रखना है। आपको आंखों की नजरें आपके अंगूठे पर रखना है। फिर आपको दूसरा पैर लेना है, श्वास भर के हो जाएगा ये अंगूठे पर। फिर आपको दोनों पैर उठाना है ऐसे। तो शुरुआत करेंगे उत्तान पादासन। जो बिगिनर्स है वो पहले पहले 7-8 दिन तक एक ही पैर से करें, क्योंकि आपको हिप मसल में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। आपके बीमबी का जो लोकेशन है उससे वो डिसलोकेट हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। धीरे धीरे से करना चाहिए उत्तान पादासन। तो स्टार्ट करते हैं। एक पैर पे, 2 3 4
5 दोनों पैर। और इस स्थिति में रुकिए, इस स्थिति में रुकिए, वाइब्रेशन महसूस कीजिए बॉडी का। पूरा ब्रेन तक बॉडी वाइब्रेट हो रही है, पेट से लेके ब्रेन तक बॉडी वाइब्रेट हो रही होगी। छोड़ दीजिए, रिलैक्स, शवासन, आंखें बंद, हाथ ऊपर, पैरों के बीच में गैप। जिसने किसने भी उत्तान पादासन अभी किया होगा उसको महसूस हुआ होगा कि पीठ से लेकर मस्तिष्क तक पूरा वाइब्रेशन हो रहा होगा, ऐसे बॉडी वाइब्रेट हो रही होगी। पैर में टोनिंग आता है, पैर का हिप मसल्स में, लंबर पेन किसी को है वो भी ठीक हो जाता है। पेट का पाचन शक्ति, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ इससे ठीक हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया जिसको किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो उत्तान पादासन कर सकते हैं। तो दूसरे आसन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा आसन है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन मतलब अपने पैरों को ऊपर लेके आना है और ऐसे करके आपको खड़े रहना है। तो करेंगे सर्वांगासन, धीरे धीरे करना है आपको। देखो मैं पहले कैसे बताता हूं। पहले अपने पैरों को मोड़ देना है, थोड़ा सा मोड़ लो अपने पैरों को, थोड़ा सा मोड़ लो जमीन पे रख के, और थोड़ा सा खींच के अपने कमर को ऊपर ले जाना, स्लोली कमर को ऊपर ले जाना है। और पीछे ऐसा आपको सपोर्ट लगाना है, पीछे आपको कमर को ऐसा सपोर्ट लगाना है। सीवियर नेक पेन है तो ना करें, स्पॉन्डिलाइटिस है वो भी ना करें, प्रेग्नेंट वुमेन को तो करना ही नहीं चाहिए ऐसे आसन, छोड़ दीजिए। रिलैक्स, शवासन। एक जानबूझ के लंबा श्वास अंदर दीजिए, पूरा रेच, पूरा रेच, पूरा रेच। शवासन के बहुत सारे फायदे हैं। जो हमारा ब्लड ब्लड सर्कुलेशन होता है वो विपरीत होता है, इसीलिए इसको जब थोड़ा सा पैर 90 डिग्री ले आना तो उसको विपरीत करनी मुद्रा भी हम बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होने के कारण ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने के चांसेस में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एक्टिवेट होती है, अच्छी तरीके से न्यूरॉन्स ट्रांसमिट होते हैं और अच्छा हमको शरीर को फायदा मिलता है। बहुत सारे फायदे होते हैं सर्वांगासन के। अब इसी में हम दूसरा आसन करेंगे, हलासन। हल की तरह पोजीशन, हल मतलब जो खेतों में हम नांगर बोलते हैं ना उसको, इसी तरह हुक, हुक की तरह हम पोजीशन करेंगे। अपने पैरों को सीधा पीछे लेंगे। जिसको किसी को बैक पेन है वो ना करे, एक्सेसिव बैक पेन है वो ना करे, स्पॉन्डिलाइटिस है वो ना करे, ये वर्ज है आसन उन लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं हलासन। पहले पैरों को पीछे लेंगे और इसी मुद्रा में रहेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा जो एब्डोमिनल है अपने उसको हमने बहुत अच्छा व्यायाम किया है, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, ट्विस्ट किया है। जो दूषित वायु है उसको हमने एक अच्छा सा बाहर फेंकने का मौका दिया है। पूरा हमारे जो नेक मसल्स तक, पूरे हमारे मसल्स है उसमें खिंचाव आया है। बहुत सारे फायदे हैं। तो उसी में हम और एक आसन करेंगे, पीठ के बल सोए हुए, पवन मुक्तासन। पवन मतलब वायु, जो हमारे शरीर में जो भी कुछ वायु है, दूषित वायु है, उसको बाहर फेंकने का आसन, पवन मुक्तासन। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको अपने पीठ के बल सो के अपने एक पैर को ऐसा छाती पे दबा के अपना जो सिर है वो पैर के पास लेके आना है, जिससे हमारे पेट पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ना चाहिए। रिलैक्स। अभी दूसरे पैर लेके करेंगे, यही आपको रिपीट करना है। तो शुरू करेंगे आपसे, पहले दाया पैर लेके शुरू करेंगे। दाया पैर लो, श्वास भरो और पेट पर जोर लगा के पैर अंदर लो। पैर को आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है, घुटनों पर नहीं पकड़ना है, नीचे भी नहीं पकड़ना है, ऐसा बीच में पकड़ना है।
वेरी गुड। अभी दोनों पैरों को लेकर करेंगे, दोनों पैरों को लेकर। प्रेशर पड़ना चाहिए, पेट पे पूरा प्रेशर पड़ना चाहिए, तभी आपको इसका ज्यादा फायदा है। रिलैक्स शवासन में सो जाइए, सो नहीं जाइए, आसन कीजिए। पवन मुक्तासन के बहुत सारे फायदे हैं। कॉन्स्टिपेशन का किसी को प्रॉब्लम है, याद रखिए, हर्निया जिसको प्रॉब्लम है ना वो ना करे, पाइल्स का जिसको प्रॉब्लम है वो ना करे, बहुत नुकसान हो सकता है ये आसन से। पवन मुक्तासन से हमारे पेट पे बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। पेट पर प्रेशर पड़ने के कारण, वो दबाव के कारण एब्डोमिनल मसल्स मसाज हो जाते हैं पूरे, हमारे गर्दन तक भी पूरा स्ट्रेच हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ये सब कॉमन चीजें हैं, कोई भी आसन करने के बाद ये पूरा आपका मांस खिंचाव आता ही है, तो कॉमन फायदे हैं इसके, पूरे कॉमन फायदे हैं। इसके डीप में भी फायदे हैं, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, और जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद है वो भी इससे सिक्रेशन होता है, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। एक लंबी श्वास अंदर लेंगे, पूरा रेचक। अभी आप पेट के बल सो जाएंगे, एक दो आसन करेंगे पेट के बल सो के, ऐसे ही आपको मुड़ के पेट के बल सो जाना है। खड़े रह के मैंने आपको आराम करने का बताया कि आपको श्वास पर ध्यान रखना है। पीठ के बल सो जाके आपको रिलैक्सिंग आसन बताया, शवासन। और जो पेट के बल सोते हैं, एक तो आसन मकरासन करते हैं, नहीं तो एक तो आसन हम बालकासन करते हैं। एक छोटे बच्चों की तरह सो जाना है आपको, एक छोटे बच्चों की तरह सो जाना है, इससे आप रिलैक्स हो जाओगे। तो हम पहला आसन करेंगे पीठ के बल सो के। पहला आसन है आसन, एक भुजंग की तरह आपका कोबरा पोस्चर जो हम बोलते हैं उसको, वैसा आपका पोस्चर होना चाहिए। एक step में करेंगे हम, एक बार हम हाथ को थोड़ा फैला के करेंगे, आपका जो ये पूरा हाथ है ना वो जमीन पे ही टेकना चाहिए ऐसे, और हम शरीर को उठाने का प्रयास करेंगे। एक, श्वास भर के उठाएंगे। दो, अभी आपको हाथ अपने छाती के पास लाना है, अपने छाती के पास लेके अपने बॉडी को और स्ट्रेच करना है। एक, दो। तो आपसे शुरुआत करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा बाहर लीजिए। यह मैं क्यों बता रहा हूं कि बॉडी हम तैयार करनी पड़ती है पहले, एक ही बार में आप पीछे गए और सडनली आपको कुछ स्लिप डिस्क हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो धीरे धीरे करेंगे, तैयार करेंगे, बॉडी को बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं, अभी आप तैयार हो जाओ, तो बाद में हम परफेक्ट भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन में आएंगे। तो शुरू करते हैं, हाथों को पहले लेके साइड में, हाथ इस तरह से टेकने चाहिए और ऊपर उठेंगे। एक, वेरी गुड। दो, अभी छाती के पास ले जाइए आप। एक, दो, और एक बार करेंगे छाती के पास ही रख के। एक, दो, रिलैक्स, बालकासन में जाइए। दूसरी तरफ अपना जो अभी इस मतलब अपना जो दाया पैर है वो लेंगे, पैर के ऊपर आप देखें कि आपका इन पे लगा हुआ है, तो स्वाभाविक श्वासोश्वास नहीं करना चाहिए, इसमें जानबूझ के पूरा प्रेशर नहीं आया आपको। अभी दूसरा आसन, क्योंकि ये एडवांस लेवल के आसन होते हैं, ये प्रॉपरली करना चाहिए। किसी को मोटापा ज्यादा हुआ है तो बहुत उपयुक्त आसन है, पेट के बल सोने वाला आसन, बहुत ही उपयुक्त आसन है। तो शलभासन करेंगे, दोनों पैरों को एक ही साथ उठाएंगे, दोनों पैरों को एक ही साथ उठाएंगे। ऐसे आपको करना है, रिलैक्स।
यह आसन करने के बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डियां है, अभी आप क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं कि फ्रंट बेंडिंग करते हैं तब आपको बैक बेंडिंग भी करना चाहिए, तो इसके लिए उपयुक्त आसन है। अभी आप ऐसे उठ के बैठ जाइए थोड़ा। समय की कमी की वजह से हम पूरे आसन आपको बता नहीं सकते, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 1 घंटे का योग बहुत असंभव है करना। उसी में भी हम प्रयास करते हैं कि पूरे चारों प्रकार के आसन आपको बताए दिए जाए। तो हम अभी सिटिंग आसन करते हैं। 2 आसन करेंगे, वज्रासन और उष्ट्रासन। वज्रासन में क्या होता है, आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है। वज्र वज्र इंद्र का हथियार बोलते हैं हम, इंद्र का अस्त्र बोलते हैं उसको, वज्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है और बहुत तगड़ा आसन है। आपके पैरों को दाया पैर पीछे लेना है आपको, बाद में आपको बाया पैर पीछे लेना है, और कॉन्शियसनेस में बैठना है। कॉन्शियस मुद्रा ऑफ कॉन्शियसनेस, मुद्रा ऑफ नॉलेज, ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है। जिस किसी को भी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या मेडिटेटिव पोस्चर में बैठने की तकलीफ है, तो वज्रासन में, ये भी एक मेडिटेटिव पोस्चर है, इसमें आप बैठ के अपना मेडिटेशन कर सकते हो। तो वज्रासन बहुत आसन है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हो। इससे आपको पता ही चला होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, क्योंकि जो हमारे अंदर जो हीट होनी चाहिए पचन करने के लिए, जो मेटाबॉलिज्म के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, वो एक वज्रासन देता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से फूड ब्रेक होता है, डाइजेशन अच्छा है, पचन शक्ति बढ़ती है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो उसी में हम वज्रासन में दूसरा आसन करेंगे, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन मतलब कैमल पोस्चर। आपको एक ऐसा पोजीशन में आना है, नील पोजीशन में, दाया हाथ से दाया पैर, बाया हाथ से बाया पैर लेके आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है। इस प्रकार बॉडी को अपने स्ट्रेच करना है। छोड़ दीजिए। उष्ट्रासन के बहुत सारे फायदे हैं। अपने बैक बेंडिंग किया, पूरा मतलब पेट का जो चर्बी है किसी को, उसका पूरा मतलब कम हो जाता है। सुखासन में या किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ जाइए। सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठे। 2 सेशन प्राणायाम के हुए हैं, तो प्राणायाम में मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। आपको जो पहले पढ़ाया है उसी में से 1-2 प्राणायाम लेता हूं और 1 मिनट ध्यान करेंगे। ओके, तो 2 प्राणायाम, एक होगा कपालभाति और दूसरा होगा भ्रामरी। कपालभाति में आपको क्या करना है, आपको नाक से फोर्सफुली श्वास को बाहर फेंकना है। रैपिड एक्सेलेशन बोलते हैं उसको, लेकिन आपको रैपिड नहीं करना है। आपकी जैसी क्षमता है, आपको जैसा होता है वैसा ही आपको करना है। तो कपालभाति 60 स्ट्रोक्स मारेंगे ज्ञान मुद्रा में बैठकर, और 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंदी होनी चाहिए आपको, जब तक मैं इंस्ट्रक्शन ना दूं आपकी आंखें बंदी होनी चाहिए। उसके बाद हम ओमकार लेंगे और सेशन को खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। अपना पोजीशन लीजिए एक मेडिटेटिव आसन में, ध्यान मुद्रा, मुद्रा ऑफ कॉन्शियसनेस, और फोर्सफुली श्वास को नाक से बाहर फेंकना है, पेट को अंदर लेते हुए। पेट आपका अंदर चलना चाहिए। अगर किसी को यह होता है तो आप देख सकते हैं रिलैक्स रिलैक्स। आपके अंदर की हलचल को महसूस कीजिए। आपके अंदर जो भी कुछ हलचलें हो रही है उसको आप महसूस कीजिए। दूसरे प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों के अंगूठे को कान में डालेंगे और लॉक करेंगे, जिससे आपको बाहर का आवाज नहीं आना चाहिए।
और जो फोर फिंगर और मिडल फिंगर है उसको हम ऐसे आंख पे रखेंगे, पूरा सिर्फ रेस्ट करेंगे, दबाना नहीं है। और एक लंबा श्वास अंदर लेंगे और एक घूंगे लगा दीजिए। धीरे से हाथ को नीचे लेंगे। आंखें किसी को बंद नहीं करनी चाहिए, आंखें सबकी बंद रहेगी, किसी को आंखें खोलनी नहीं चाहिए। 1 मिनट हम अपना ध्यान पूरा अपने जो श्वास अंदर बाहर करते हैं उसी पे लगाएंगे। एक मधुर ध्वनि में हम 1 मिनट ध्यान करेंगे। अपने अंदर महसूस कीजिए क्या हो रहा है। See within you what is happening around। अपने पूरे सेल्स रिवाइटलाइज हुए, आप प्रसन्न हो गए हो, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, कोई भी तनाव नहीं है बॉडी में, रिलैक्सेशन मोड में आप गए हो सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करके। अपना दाया हाथ को अपने बिंदी के ऊपर रखेंगे हल्के से, और जो बाया हाथ है वो मस्तिष्क पे लगाएंगे। एक लंबा सा श्वास लेंगे और ओंकार ध्वनि गाएंगे। ओ धीरे से हाथ को उठाएंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों में ऊर्जा निर्माण कीजिए, जितनी ऊर्जा हो सकती है उतनी ऊर्जा निर्माण कीजिए। प्रथमता अपने आंखों को लगाइए, मुंह को लगाइए, माथे को लगाइए, मान पे लगाइए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपना माथा धरती माता को लगाकर नमन करेंगे और एक प्रसन्न मुद्रा में अपनी आंखें खोलेंगे। मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? धन्यवाद। योगा और उसके फायदे बहुत सारे हैं। ये मैंने आपको शारीरिक और मानसिक फायदे बताए हैं। सर अभी मेरा एक आपको क्वेश्चन पता है कि योगा एज ए स्पोर्ट्स डिक्लेयर हुआ है, ओलंपिक्स में भी उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत करियर अपॉर्चुनिटी है जो हमारे यूथ है, जो हमारे टीचर्स है, योग टीचर बनने का और एक अच्छा देश की सेवा करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा और एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है। खेलो इंडिया में आप कोई भी मेडल लाओ, आपको 8 लाख तक की स्कॉलरशिप ईयरली मिलती है। तो इसके बहुत सारे योगा के आंतरिक और जो आप शारीरिक और मानसिक बोलते हैं वही सीमित ना रहकर योगा अभी खूब बहुत ब्रॉड हो गया है, पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया है। आज हम इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं। यही कारण है कि योगा की बहुत पब्लिसिटी हुई है। अगर कोई भी छात्र योगा में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको बहुत ही उसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। तो मैं सर्वप्रथम ज्ञान प्रसारक कॉलेज मंडल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओम नित्य दिव्य योगाश्रम की तरफ से कि उन्होंने हमें आपके सामने यह विषय रखने का मौका दिया। वैसे ही जो ध्यान प्रसारक मंडल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो बैकहैंड पे पूरे काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं हम उनको, बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है संभालना, उनको भी हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हमारे सामने यह 3 दिन का कार्यक्रम इतने अच्छे तरह से सादर हुआ है। और आशा करते हैं कि लोगों से कि उनको अपने योग प्रेमियों से कि उनको यह 3 दिन का कार्यक्रम बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। तो फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? Thank you, sir. यस, क्वेश्चन आंसर। Yeah. Shashi sir, yeah. हाँ सर, ये पूछना है, ये सर योगा स्टार्ट करते समय हमें किस श्लोक का से स्टार्ट करना है और कौन से श्लोक से खत्म करना है? एक और क्वेश्चन है, और हमको स्टैंडिंग पोजीशन से स्टार्ट करना है कि सिटिंग पोजीशन से? हेलो हेलो, हाँ, एम ऑडिबल सर? हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर। यस। हाँ सर, ये या मेरा पूछना था जो कि हमें हम अभी श्लोक, यस, हाँ, मैं कौन से श्लोक से हम सर स्टार्ट करेंगे योगा और सुनाई कौन दिया। से श्लोक से फिनिश करेंगे? यस, ऐसा श्लोक नहीं है कि हम कौन से श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी श्लोक आप लोग शांति पाठ लोग किसी से भी हम शुरू कर सकते हैं। ज्यादा करके जो एंडिंग करते हैं शांति पाठ से करते हैं। जो हमारे योगा के प्रोटोकॉल में दिया हुआ है वो भी प्रेयर हम ले सकते हैं। आयुष मंत्रालय के जो योगा प्रोटोकॉल दिया है उसमें जो प्रेयर दिया है वो भी ले सकते हैं। हम योगेन चित्तः से बोलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मतलब जो श्लोक आपको उत्तेजित करते हैं वो श्लोक आपको लेना चाहिए। ज्यादा करके एंडिंग में शांति पाठ लेना चाहिए। योगा आप खड़े रह के भी करते हो और बैठ के भी करते हो, लेकिन ज्यादा करके क्या होता है, सूर्य नमस्कार आप खड़े रह के करते हो स्टार्टिंग में और बाद में आप आसन में आते हो, तब आप मेडिटेटिव पोस्चर के लिए आसन में बैठते हो। तब आप मेडिटेटिव पोस्चर में किया तो आपके शरीर को ज्यादा फायदे है। Question. Thank you very much, sir. One more question is Okay, from sir. Thank you, Karanpur sir. Sports. Yes, sir. Please ask your question, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो हम लोग कार्डियो के लिए कौन सा योगा हम लोग करेंगे और कौन सा प्राणायाम करने से अच्छा रहेगा कार्डियोवास्कुलर के लिए? यस, के लिए अभी मैंने अपने आपको पहले ही बताया कि पीनियल ग्लैंड कार्डियोवास्कुलर इश्यूज बहुत ही हैंडल करता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया, जो पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है वो पूरे आपको आसन करने चाहिए।
हस्त प्रसारासन के 4 प्रकार होते हैं, वो आपको चारों, अभी मैंने आपको एक ही बताया हस्त प्रसारासन। हस्त प्रसारासन आपको करना चाहिए, थाइमस ग्रंथि को जो स्टिमुलेट करते हैं वो आसन आपको करने चाहिए। अभी मैंने हस्त प्रसारासन करके दिखाया, एक अर्धकटी चक्रासन दिखाया, वो सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक आसन है। अच्छा। और एक दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा, वो जो सूर्य नमस्कार के लिए मेरा जितना जो मंत्र है उतना बार हमको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, या अगर मान लीजिए कोई नहीं हो सक रहा है, वो बीच में ब्रेक करने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना सूर्य नमस्कार में? देखिए सर, सूर्य नमस्कार जो होता है ना, वो आपके प्रैक्टिस पे होता है। आप पहले बार जब होते हैं 13-12 होते हैं, तो आप एक ही सूर्य नमस्कार करोगे तो 12 नहीं जप सकते। ये वो एक प्रक्रिया है, आपके गिनने की प्रक्रिया है। मंत्र जब हम बोलते हैं तो 12 मंत्र हो जाता है, मतलब आपका एक सेट हो जाता है। प्रत्येक सूर्य नमस्कार करते समय सूर्य देव की प्रार्थना करना जरूरी है। आप कौन सा नाम लेते हो या रिपीट करते हो वो जरूरत नहीं है, आपके बॉडी आप कैसा करते हो। और आप ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। हम सुशांत सर से बाद में हम मैसेज में एक बात कर लेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for question and answers. Yeah. Okay, sir. Thank you. Yeah. Now, on the occasion of 7th International Yoga Day, it is our proud privilege that we could organize this 3-day webinar series, and all this could be conducted so smoothly with the help of all those people who help us directly or indirectly in organizing this seminar. And all this cannot go without expressing our gratitude to them. First of all, I would like to thank our resource person, Lieutenant Dr. Shyam Narayan Singh, Sri Sanjeev Nandu Naik ji, and Sri Utkarsh Naik ji for accepting our invitation and consenting to be the resource person for this webinar series. They have demonstrated the yoga asanas very effectively and explained the health benefits of them. The Department of Physical Education of our college has always been performing outstanding, and all this has been possible only with the support of our principal and management. I sincerely thank our principal, Professor D.B. Arolkar, for always encouraging us and supporting us. Participants, without you, webinar would not been possible. A big thank you to each and every one of you for attending this webinar. The e-certificates will be issued to all the participants once you submit the feedback form. Link will be sent in WhatsApp group. This webinar is all well planned and organized by my colleague, Mr. Rohit Naik, instructor in physical education at our college. Thank you, Rohit, for organizing the webinar so successfully. I would like to thank the technical support team of Mr. Lowell Nazareth and Mr. Sahil Dangi. Once again, I would like to remind the participant to fill in the feedback form so that e-certificates can be released. Thank you one and all. I hope this was a learning experience to all. Thank you very much. Yes, and in near future we will have